Assalamualaikum dear viewers. Welcome again in our YouTube channel Career Ready J&K. Myself Mohammad Shafi Mir. I am going to solve this very numerical which is based on law of conservation of momentum. So the numerical is a bullet of mass 10 kg is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. This is the numerical. लेट अस सॉल्व इट बेटा. तो यहाँ पे जो मास है बुलेट का वो है 10 ग्राम. जी ग्राम है बेटा. तो दिस इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ मास. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. सो वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम. फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड 10 by 1000. So here I have divided 10 by 1000. 1010 cancels out. It remains here 1 divided by 100 kg. This is the mass of bullet in kilograms. So again this is velocity of bullet given. It is given here. The velocity of the bullet is 300 meter per second. So I have written here this is the velocity of the bullet is 300 meter per second. We know that momentum of a body is the product of its mass and velocity. एक बॉडी में मास कितना है, एक बॉडी में वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, जो निकलेगा तो वो बेटा होता है मोमेंटम ऑफ द बॉडी. फॉर मोमेंटम वी मस्ट हैव सम mass is already, for example it is 5 kilogram, and for example a body is moving with velocity for example 3 meter per second. So the momentum of this very body whose mass is 5 kg and velocity is 3 meter per second, it is momentum P is equal to 5. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 and 3 को मल्टीप्लाई करना है, and the SI unit is kilogram meter per second. 5 3 is 15. It is 15 meter per kilogram meter per second. हम आगे बढ़ेंगे. The momentum of a body is the product of its mass and velocity. So the momentum of the bullet is m into v, that is m is mass, m stands for mass, and v stands for velocity of the bullet. मास का वैल्यू पुट करेंगे बेटा. कहाँ है? इधर है. 1/100 kg. इट इज़ 1/100 लिखा है यहाँ पे, एंड इट इज़ इनटू वी का वैल्यू डालेंगे. इट इज़ 300 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 300 मीटर पर सेकेंड, एंड इज द SI unit ऑफ द मोमेंटम. द मोमेंटम ऑफ आवर institute, of our school, whatever the body is at rest, it is momentum is 0 because the velocity is 0. The body is at rest and having no motion, having no velocity, the velocity is 0, it becomes 0, the momentum becomes 0. Whatever the body is at rest, it is momentum is 0. So here the momentum of the bullet, it becomes 2020 cancels out, and it remains 3 into 1. It is 3 kilogram meter per second. So let us move forward. नाउ मास ऑफ गन इधर दिया है, न्यूमेरिकल में दिया है. गन का मास जो है वो है 6 किलोग्राम. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 6 किलोग्राम. अब सपोज करेंगे, लेट करेंगे, एजम्पशन करेंगे कि जो वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, जो पीछे की तरफ ये धक्का देता है गन जब फायर करते हैं, कोई पुलिसमैन, कोई आर्मी मैन, कोई भी जो है जो गन चलाता है, जो फायर करता है, तो जो गन है वो वापस वेलोसिटी देता है, मोशन करता है वापस. दैट इज़ वाई जो शोल्डर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो शोल्डर के साथ जो गन है उसको फिक्स करते हैं. हम आगे बढ़ेंगे. जो इसका मोमेंटम आएगा मास इंटू वेलोसिटी, दैट मास कितना है? 6 kg का है, 6 लिख लिया यहाँ पे. और जो इसका वेलोसिटी है, जो पीछे की तरफ धक्का आएगा, वो है VR, दैट इज़ रिकॉइलिंग वेलोसिटी. R स्टैंड्स फॉर रिकॉइलिंग एंड V स्टैंड्स फॉर velocity, recoiling velocity of the gun. Now according to the law of conservation of momentum, this is the topic, and the numerical is based on that very topic.
सो इट्स रेट इज दैट मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड। कंजर्वेशन का मतलब है कि जो कंजर्व रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इट स्टेट्स दैट मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, हम पैदा कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। That is the momentum of the two bodies before collision is equal to the total momentum of the two bodies after collision. तो चेंज क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है तो चेंज होता है वो वेलोसिटी चेंज होती है, मास किसी का चेंज नहीं होता है। मास रिमेन्स फिक्स, मास इज स्केलर क्वांटिटी, इट ऑलवेज रिमेन्स फिक्सड। what changes is the velocity of the two bodies changes if the two bodies collide with one another। अगर वो टक्कर खा जाएंगे तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके साथ किसी का वास्ता नहीं है। तो ये एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल इसका मास m1 है और ये जो मूव कर रही है वेलोसिटी v1 से कर रही है, दूसरा बॉडी है m2 तो वेलोसिटी v2 है, आपस में कोलाइड हो गए, टक्कर खा लिया, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो सेम टू सेम रहेगा। हम यहाँ पे आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। सो तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, जितना मोमेंटम बुलेट का होगा उतना मोमेंटम गन का होगा। गन का मोमेंटम कितना है वो है, इसका मास कितना है, 6 kg का मास है, और रिकॉइलिंग वेलोसिटी कितना है वो वी है। सपोज करते हैं वो अभी आ गया बुलेट के मोमेंटम के बराबर जो हमने निकाला इधर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलो हम आगे बढ़ेंगे। जो वी है ये इसकी जो है ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज जो हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। कर लिया डिवाइड, हम काट लिए बेटे यहाँ पे 6 1000, तो ये नहीं कटेगा, 0 डालना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा 30 बनाने के लिए, 6 5 30, 0.5 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस हैनस द recoiling velocity of the recoil velocity of the gun is 0.5 meter per second. Thank you, hope you have understood this very numerical. You can take screenshot of this very page